Now we'll be starting is section 14, which talks about the change in rate. Now in the middle of a transaction, it is possible that the GST rate changes. In such cases, which rate is to be applied is given in section 14. It provides you certain rules to identify that. Now let's say it is possible that the supply must be given before the change in rate, whereas certain elements like invoice and payment must have happened after the change in rate. So let's say the old rate is here, and when the old rate was prevalent, I have completed the supply. However, the invoice was issued after the change in rate and the payment was also made after the change in rate. Now question comes up, which rate will apply to that particular transaction, whether it is the old rate that will apply to the transaction or the new rate. What do you think? Now obviously everyone would have different answers. So to simplify that and to bring in a uniformity, section 14 provides you certain rules. So the rule is pretty simple, just give it a little time, you'll understand that. The very first thing that you need to identify is when the supply happened. Whether the supply was made before the change in rate, then that will fall under category 1 or category A. Or you have to identify whether the supply happened after the change in rate. So that would fall under part B. So you need to check कि सप्लाई कब हुआ था, रेट चेंज होने के पहले कि रेट होने के बाद. अगर रेट चेंज होने के पहले अप्लाई हुआ, supply was given before the change in rate, then these will apply. Then you need to see whether the invoice कब आया था, invoice was after the change in rate, payment भी after the change in rate. So in this example, we had seen supply was before the change in rate, so it fell in category A. अब क्या हो रहा है, invoice was also after and payment was also after. So let's see what is the rule given. When invoice was also after and payment was also after, then we will see the time of supply will be the date of invoice or date of payment, whichever is earlier. तो ये दोनों dates में से जो भी earlier है, let's say date of invoice was earlier, so this will be the time of supply. अगर time of supply ये date पे हुआ, तो which rate will apply? The new rate will apply, because it will be deemed that supply is given on this particular day. Now let's see the other ones. It is possible that the invoice was before the change in rate but the payment was after. So in such cases we will take the date of invoice. If invoice was after the change in rate but payment was before the change in rate, then we will take the date of payment. अब इसको कैसे रिमेंबर कर सकते हैं? Just give it some time. I will be explaining and giving you some way to learn it and understand that. So यहाँ पे ये before है, तो जो भी before होगा वो select हो जाएगा. तो यहाँ पे date of payment select हो गया. यहाँ पे कौन सा before था? Date of invoice. तो date of invoice is the time of supply. And when both are the same, then the answer will be whichever is earlier. So give it still some time, you will understand that. Let's say if it is a second category where supply was given after the change in rate. So then these three cases can apply and we'll see what are the rules given. If invoice was before the change in rate but payment was also, both of them, payment was also before. जब दोनों same होता है तो answer is whichever is earlier. But if invoice was before the change in rate and the payment was after the change in rate, then in such case it will be the date of payment. Again, in invoice was after but payment was before, then we'll take the date of invoice. इसको भी कैसे learn करना है? हम लोग पहले देखेंगे कि ये after आया, supply was given after the change in rate, तो अभी जो भी after होगा वो select हो जाएगा.
सो डेट ऑफ पेमेंट एंड यहां पे डेट ऑफ इनवॉइस. जब दोनों सेम होते हैं देन इट विल ऑलवेज बी विच एवर इज अर्लियर. ना आई नो इट सीम्स कि बहुत टफ है, बट इसको हम लोग वापस एक बार मेमोराइज करने के लिए एक टेक्निक देखते हैं. नाउ यू विल अंडरस्टैंड इट परफेक्टली. वेरी फर्स्ट थिंग, कैटेगरी ए में फॉल हो रहा है या कैटेगरी बी, तुमको पहले वो आइडेंटिफाई करना है. ओके अगर कैटेगरी ए क्या है, सप्लाई इज बिफोर द चेंज इन रेट, तो हम लोग देखेंगे अगर सप्लाई रेट चेंज होने के पहले ही दे दिया, तब अगर ये दोनों बिफोर होता है, अगर दिस इज ऑल्सो बिफोर, लेट्स से this was before and invoice happened after, payment also happened after, so then we will take whichever is earlier. But अगर ये invoice was before and payment was after, then हम लोग लेंगे जो भी before है वो ले लेंगे date of invoice. अब यहां पे अगर invoice was after but payment was before, तो जो भी बिफोर है हम लोग वो ले रहे हैं, दैट इज द डेट ऑफ पेमेंट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. यहां पे देखते हैं नाउ जस्ट अप्लाइंग द सेम लॉजिक हियर इन दिस कैटेगरी. दिस यू शुड बी एबल टू टेल मी. सप्लाई वाज आफ्टर द चेंज इन रेट, और रेट बदल गया उसके बाद में सप्लाई दिया गया. अगर दोनों बिफोर होता है, ये भी बिफोर, ओके ये भी बिफोर और ये भी बिफोर, सो व्हाट विल बी द आंसर व्हेन बोथ आर दिस? इट विल बी विच एवर इज अर्लियर. अगर ये बिफोर है और ये आफ्टर है तो कौन सा रेट लेंगे हम लोग? सो ये सिंस हम लोग आफ्टर वाला केस कर रहे हैं तो जो भी आफ्टर है वो सिलेक्ट हो जाएगा, डेट ऑफ पेमेंट. इन दिस इनवॉइस वाज आफ्टर बट पेमेंट वाज बिफोर. ओके सो देन वी विल सी कि जो भी आफ्टर है वो सिलेक्ट हो जाएगा, दैट इज द डेट ऑफ इनवॉइस. सो दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर इट. जस्ट टेक अ स्मॉल लिटिल स्क्रीनशॉट ऑफ इट. इट्स वेरी सिंपल. ओके ये तभी कंफ्यूजन होता है जब थोड़ी चीजें पहले होती है, थोड़ी चीजें आफ्टर होती है. टेल मी वन थिंग, ये सिनेरियो हो सकता है क्या? इनवॉइस, लेट्स टेक, टेल मी ये सिचुएशन हो सकता है अगर इनवॉइस इज बिफोर एंड पेमेंट इज बिफोर, तो कंफ्यूजन होगा कुछ, क्या टाइम ऑफ सप्लाई होगा? कॉमन सेंस से ये सिचुएशन हो ही नहीं सकता. क्यों? तो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं अगर रेट चेंज यहाँ पे है, रेट चेंज यहाँ पे है. अब कंप्लीशन भी इधर हो गया सप्लाई का, इनवॉइस भी इधर हो गया और पेमेंट भी इधर हो गया, तो कंफ्यूजन तो आने ही नहीं वाला है. अगर ये सिनेरियो हो सकता है, ये सिनेरियो हो ही नहीं सकता, कंफ्यूजन होगा ही नहीं इसमें, क्योंकि सब चीजें ही बिफोर हो रही है, एक भी ऐसा कोई चीज नहीं है जो आफ्टर हो रहा है. अब ये सिचुएशन में बोलो, ये ऐसा हो सकता है क्या? इनवॉइस भी आफ्टर और पेमेंट भी आफ्टर, तो बोलेंगे नहीं भाई इसमें भी कंफ्यूजन का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है, बिकॉज अगर रेट यहां पे चेंज हुआ, रेट चेंज, सप्लाई कंप्लीशन भी इधर हो गया, इनवॉइस भी इधर हो गया और पेमेंट भी इधर हो गया, तो फिर कंफ्यूजन ही क्या है? न्यू रेट ही लगेगा. क्लियर है ना? तो ये सब सिनेरियो ही हो सकते हैं, ऑल दीज सिनेरियोज. ओके नाउ व्हेन वी डू द सम्स you will be able to answer it much better. Now the time of supply in case of change in rate. Determine the time of supply in the following cases. The rate of CGST was increased to 12% on this date. Before that the rate of GST was 5%. Okay, so we can say यहाँ पे change in rate था, change in rate. What was the date? 1/10/2017. ये था न्यू रेट और ये था ओल्ड रेट.
Okay, they are telling us find out the time of supply and also what rate will be applicable. So देखते हैं. सबसे पहली चीज क्या डिटरमाइन करना है हमको कि सप्लाई कब देगी दिया है, वेदर इट इज बिफोर द चेंज इन रेट और सप्लाई इज आफ्टर द चेंज इन रेट. तो सबसे पहले हम लोग को सप्लाई ढूंढना पड़ेगा. सो डेट ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विस was 25th September 2019. So 25th September को सप्लाई दे दिया था, मतलब ये यहाँ पे आएगा सप्लाई इज बिफोर द चेंज इन रेट. द सप्लाई इज बिफोर द चेंज इन रेट. तो ये कैटेगरी ए में आएगा. तो कैटेगरी ए में क्या बोल रहे हैं कि we'll see invoice is given and payment is given. So ये डेट ऑफ इनवॉइस है. इनवॉइस कब आया है? इनवॉइस इज आफ्टर द चेंज इन रेट एंड पेमेंट इज ऑल्सो आफ्टर. तो ये भी आफ्टर द चेंज इन रेट और ये भी आफ्टर चेंज इन रेट. सो वील से विच एवर इज अर्लियर. तो यहाँ से अर्लियर कौन सा है? डेट ऑफ इनवॉइस. और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर 5/10/2000 दिस. तो वो टाइम पे कौन सा रेट अप्लाई हो रहा है? जब 5/10/2000 इट विल बी द न्यू रेट. न्यू रेट क्या है? 12% लगेगा. ठीक है. ये क्या था? सप्लाई इज बिफोर द चेंज इन रेट. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं वापस. यहां पे सप्लाई दे दिया था. सप्लाई वॉज बिफोर द चेंज इन रेट. इनवॉइस कब बन रहा है? इनवॉइस 25/9 को बन रहा है. यहां पे इनवॉइस बन रहा है 9 को. तो इट इज योर बिफोर द चेंज इन रेट. और 8/10/2017 को पेमेंट आ रहा है 8/10. तो दैट इज आफ्टर. सो दोनों में हम लोग कौन सा लेंगे? विच एवर इज द बिफोर. सो 25/19/2017. तो वो टाइम पे 25/9. तो 9 ये टाइम पे कौन सा रेट अप्लाई हो रहा होगा? दी ओल्ड रेट विल अप्लाई. तो यहाँ पे 5% ही लगेगा. नेक्स्ट वापस सप्लाई वॉज बिफोर द चेंज इन रेट. तो ये बिफोर द चेंज इन रेट. तो अभी जो भी बिफोर एलिमेंट होगा बिटवीन द इनवॉइस एंड पेमेंट दैट विल बी टेकन. सो डेट ऑफ इनवॉइस वॉज 8/10. तो ये आफ्टर है. और पेमेंट कब है? पेमेंट इज बिफोर. सो विच एवर इज बिफोर वी विल सिलेक्ट दैट. सो अगेन वी विल टेक दिस 30th September 2017 इज योर टाइम ऑफ सप्लाई. और वो टाइम पे रेट कौन सा प्रिवेलेंट था? 5%. दैट विल बी टेकन. अब नेक्स्ट केस देखते हैं. डेट ऑफ सप्लाई. सप्लाई कब दे दिया था? सप्लाई वॉज ऑन 4/10/2017. तो सप्लाई नाउ वी कैन से इज ऑन 4/10. मतलब सप्लाई इज आफ्टर द चेंज इन रेट. राइट. सप्लाई इज आफ्टर द चेंज इन रेट. सो अभी इनवॉइस और पेमेंट में जो भी आफ्टर होगा वो सिलेक्ट होगा. सो डेट ऑफ इनवॉइस इज 28/9. तो ये बिफोर है. 30/9 इज डेट ऑफ पेमेंट. तो ये भी बिफोर है. सो दोनों बिफोर बिफोर हो गए. ये भी बिफोर, ये भी बिफोर. सो व्हाट वी विल डू? वील से विच एवर इज अर्लियर. यहां से कौन सा अर्लियर है? सो अर्लियर विल बी 28/9. और 28/9 पे कौन सा रेट प्रिवेलेंट था? सो इट विल बी 5%. नेक्स्ट इफ वी सी वापस सप्लाई वॉज आफ्टर द चेंज इन रेट. तो रेट कब बदला था? 1/10/2017 को. जबकि सप्लाई कब कंप्लीट हुआ था? 1/10 के बाद 4/10 को कंप्लीट हुआ था. सो इट इज आफ्टर द चेंज इन रेट. तो उसके क्या प्रोविजन था? ये दोनों में से जो भी आफ्टर आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा. सो 4/10 इज आफ्टर द चेंज इन रेट और ये बिफोर है.
So दोनों में से आफ्टर कौन सा है वो सिलेक्ट हो जाएगा. ओके, दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई. अब 410 पे कौन सा रेट अप्लाई हो रहा होगा? इट इज द न्यू रेट, 12% लगेगा. नाउ अगेन यहाँ पे 4/10/2017 इज द चेंज इन रेट. तो वो आफ्टर चेंज इन रेट था. सप्लाई वॉज कंप्लीटेड ऑन 4/10/2017, दैट इज आफ्टर. तो अभी यहाँ पे देखते हैं, इनवॉइस इज बिफोर, इवन पेमेंट इज आफ्टर 8/10. So what we'll do, whichever is after will be selected. So date of payment will be there. अब 8/10 पे कौन सा रेट अप्लाई हो रहा था? It is the new rate will apply. Clear? So we will multiply this with this rate and जो भी टोटल आएगा that is the amount of GST payable. So 12%, 5%, 5%, 12%, 5, and then you have 4, 5, 12, 12. So 5, 12, 12. So that is it. So pretty simple sums, not very complicated. That is it. So we are done with the section.